Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Let's see the start करते हैं. Previously we completed our chapter number 10, and its exercise and other grammar structures are still to be still to be done, and so you have to make the sentences from the above given hints. Jibe, who will do it? Raise your hands. जी बच्चों, कौन करेगा जी पहला क्वेश्चन? जी फातिमा नईम. No, Margaret didn't know what to do to keep. Margaret didn't know how to help the farmers in such a disaster. He did not know what to do to keep the locust away. It was her first experience. She hadn't faced any calamity like the locust. She was astonished and confused. शाबाश. अब किसके बारे में बताना है? मार्गरेट के बारे में बताना है कि मार्गरेट क्या जानती थी कि कैसे हेल्प करनी है. नेगेटिव आ गया. डिडंट नो. मार्गरेट डिडंट नो हाउ टू हेल्प द फार्मर्स इन सच डिजास्टर, सच अ डिजास्टर. क्या होगा? टू कीप द लोकस्ट अवे. बिकॉज अगर रीजन आ जाएगी, इट वाज हर फर्स्ट एक्सपीरियंस, और शी hadn't faced any calamity like the locust before, और she was astonished and confused. उसके बाद है जी नेक्स्ट वाला हमारा है जी. who will do it? जी फिजा परवेज. The old Stephen picked the stray locust off his shirt. He submitted it with his thumbnail. It was clotted with eggs. The old Stephen was filled with anger that it would destroy his crops. जी क्या होगा? पिक कौन कर रहा है? ओल्ड स्टीफन कर रहा है. ओल्ड स्टीफन picked the stray locust off his shirt. He split it. क्या होगा? with this thumbnail. कौन क्लॉटेड हुआ था? ज़ाहिर इंफॉर्मेशन किसके बारे में है? द locust was clotted with eggs या heavy with eggs. और क्या होगा? ज़ाहिर है वो भी, स्टीफन भी गुस्से में उसने उसे मसल दिया. क्या होगा? ओल्ड स्टीफन was filled with anger because the locust या क्या होगा had destroyed his crops. उनको तबाह कर दिया था. जी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जी. Who will do it? जी अरीबा खान. हॉपर्स कैसे डिफरेंट हैं लोकस से? जी कोई और करेगा? अरीबा की आवाज सही नहीं आ रही. अहमद तोकीर. जी अहमद तोकीर. जी सर. जी you have to do it. सभी अभी तक स्क्रीन इशू हुई. Okay, there is a network problem with you. And जी आयशा मुनव्वर, फरा अकरम, anyone? फातिमा इफ्तिखार. The hoppers are the young insects. While the locusts are the ones, they are more harmful for crops. Locusts have more strength than the hoppers.
जी, कौन है young insects? The hoppers are the young insects while the locusts are grown ones. और डेफिनेटली जो बड़े हैं ज़ाहिर है वो ज्यादा खतरनाक हैं. The locusts are more harmful for crops because they have more strength than the hoppers. वो हॉपर की निस्बत उनमें स्ट्रेंथ क्या है, वो ज्यादा है. लेट्स सी जी, मूव टू द नेक्स्ट. क्या मार्गरेट ने हिम्मत छोड़ी इस पे? कम ऑन, विल डू. फातिमा मुजाहिद. हुज़ैफा असलम. तलहा इस्लाम. Margaret did not lose her height at the loss of crops. ठीक है. He has strong nerves. ये ही है, शी है. He tried, Margaret, जी. she tried to get used to the loss done by the locusts. ठीक है. She optimistic even after the ये एडजेक्टिव है ना, तो उसमें इंफॉर्मेशन के लिए क्या यूज करते हैं हम? was वाज क्या बनेगा? she was optimistic शी वॉज even after the ऑप्टिमिस्टिक. जी. क्या होगा? मार्गरेट डिडंट लूज हार्ट, शी हैड स्ट्रॉन्ग नर्व्स, शी ट्राइड टू गेट यूज, और शी वॉज ऑप्टिमिस्टिक. तो क्या होगा? जहां पे इंफॉर्मेशन आ जाए वहां पे वॉज वर या हैज हैव हैड का इस्तेमाल करते हैं. जहां पे वर्ब आ जाए वहां पे सेकंड फॉर्म लगा देंगे. जी, मरियम अमजद करेगी जी नेक्स्ट क्वेश्चन. लोकस्ट कैसे कंपेयर किए जा सकते हैं बैड वेदर के साथ? शमसा, शाजेब, शाजेब खान, कासिम. The locusts are be compared with bad weather because they are immediate and dangerous for crops, and they attack as bad weather and destroy crops. जी. कौन कंपेयर किए जा सकते हैं? The locust can be compared with bad weather because क्या होगा? They are imminent and dangerous for crops. They attack crops as bad weather. और क्या होगा? They and destroy them in no time. यानी बहुत थोड़े टाइम में वो क्या करते हैं? उसको तबाह कर देते हैं. जी, नेक्स्ट है जी, कैसे उन्होंने why did men eat their supper with good appetite? कैसे उन्होंने अपना खूब भूख के साथ खाना खाया या जी भर के खाना खाया? कैसे जी? समिया हसन. समिया हसन. Yes, sir. जी भी, कैरी ऑन. Men ate their supper with good appetite. They want to forget their loss. They कब work की बात laboriously. कर रहे हैं ये? अभी की जब बात है, Lucas पास्ट की ने बात? कौन से past टेंस की. में? They wanted पास्ट में कौन सी फॉर्म जी लगानी? past में second. ईट की कौन सी फॉर्म लगेगी? Ate. एट. वांट. They wanted to forget their loss. They ठीक है. worked laboriously. They felt वर्क उस वक्त tired. किया या उस वक्त से पहले कर लिया था जब उन्होंने खाना खाया?
उस वक्त से पहले कर लिया। पहले के लिए जो पहले काम हो वो कौन सा टेंस होता है? परफेक्ट टेंस। जी, क्या बनेगा? They have worked दे laboriously. हैड पास्ट में कर रहे हैं, पास्ट में ये काम कंप्लीट हो गया। Sorry, दे sir. हैड वर्कड लेबोरियसली। उसके बाद They felt tiresome and hungry. शाबाश। They contended even at the loss. अब They could कंटेंटेड be एडजेक्टिव है, they, वर्ब नहीं है, ये कंटेंटेड एडजेक्टिव है। तो क्या होगा जब एडजेक्टिव हो तो क्या लगाते हैं? फिर was were इस्तेमाल करते हैं। दे वर कंटेंटेड। they were contented. जी, They could be worse. They वो could be वर्स worse नहीं, than it वो had. वर्स नहीं थे, उन्होंने कहा कि ये वर्स हो सकता था। तो they said that it could be worse. They said Than that it had. it had happened. जैसे हुआ था उससे भी बुरा हो सकता था। शाबाश, गुड ट्राई। Thank you. इन सर दिस वे ये जो फोर्थ सेंटेंस है इसमें ये नहीं आएगा दे वर फीलिंग टायरसम एंड हंग्री? दे क्या होगा? वर फीलिंग या दे फेल्ट, दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। दे फेल्ट हंग्री, दे वर फीलिंग क्या होगा? टायरसम एंड हंग्री। उस वक्त कर रहे थे ना, ये उस पॉइंट की बात है जब वो खाना खाया, तो उस वक्त जो है वो कर रहे थे, या उस वक्त किया। ये पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है ना वो हम क्या यूज करते हैं? पास्ट क्या होगा? कंटिन्यूस पे लगा सकते हैं और इंडेफिनिट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि एक वाक्य का बयान कर रहे हैं। ईट का, वांटेड का, ये हम वाक्य बयान कर रहे हैं, तो उसमें दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी फेल्ट भी हो सकता है और वर फीलिंग भी हो सकता है। जहां पे इंफॉर्मेशन है वहां पे वॉज वर आ जाएगा। और क्या होगा? दे सेड दैट इट कुड बी वर्ड्स। और वर्क लेबोरियसली चूंकि उस वक्त नहीं किया जिस वक्त वो खाना खा रहे हैं, ये सारी सिचुएशन बाकी खाना खाने की उस वक्त की है, लेकिन जो काम किया था उन्होंने वो पहले हो गया था, वो ऑलरेडी हो गया था। तो इसलिए क्या होगा वहां पे? जो ना परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे जो उससे पहले हो गया था। क्लियर हो गया जी? डन? पॉइंट क्लियर हो गया बच्चे? यस सर। Yes. जी, उसके बाद है नेक्स्ट सी। लेट्स सी जी, ये हो गया आई थिंक। हाँ, ये हो गया सवाल। अब ये कंजक्टिव वर्ब हमने देखते हैं जो हम वी Yes, sir. कंजक्टिव वर्ब में आपने देखना है कि कौन कौन से हैं। मजीद सिमिलर बात करनी हो, इजाफा करना हो तो आल्सो, बिसाइड्स, फाइनली, फर्दरमोर, मोरओवर, क्या होगा? इसका इस्तेमाल करते हैं। कंपेयर करना हो, लाइकवाइज, इक्वली, सिमिलरली, यानी सेम चीजों को बनाना हो तो फिर लाइकवाइज, इक्वली, सिमिलरली होगा। जिस चीज को बयान करना हो, इलस्ट्रेट करना हो तो लाइक, इंडीड हो गया। अगर टाइम को शो करना हो, मीनवाइल, नेक्स्ट, स्टिल या सब्सिक्वेंटली या बिफोर, आफ्टर को इस्तेमाल करेंगे। कॉज एंड इफेक्ट को इस्तेमाल करना हो तो फिर हमने क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? अकॉर्डिंगली, हेंस, देन, देयरफॉर, दस और सब्सिक्वेंटली। कंट्रास्ट हो तो इंस्टेड, हाउएवर, वर्थलेस और नॉनलेस। ये सारे के सारे डिफरेंट जो ना वो कंजक्टेड वर्ब हैं। कंजक्टेड वर्ब का फंक्शन क्या होता है कि ये दो क्लॉजेस के दरमियान रिलेशनशिप को भी शो करते हैं और कंजक्शन का रोल भी प्ले करते हैं। फर्ज करो मैं क्या होगा, सपोज मैंने इसमें से किसी का इस्तेमाल करना हो तो क्या होगा? आई वेंट टू लाहौर, आई वेंट टू लाहौर। और फर्दर मोर क्या होगा? फर्दर मोर क्या होगा? आई विजिटेड पढ़ा। अब यहाँ पे पहली क्लॉज में एक एक्शन है, यानी आई वेंट टू लाहौर है, और मजीद बरा ये एडिशन कर रहा है उसमें, यानी कि लाहौर गया और उसके बाद वो काड़ा विजिट किया। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या कर रहा है? एड अप कर रहा है। तो जब एड अप कर रहा हो तो हम क्या यूज करते हैं? फर्दर मोर का कंजक्टिव वर्ब इस्तेमाल करते हैं। क्या होगा उसके बाद है? फर्ज करो यहाँ पे लास्ट वाले में अगर हम देखें
लास्ट वाले में कैसे होगा? सपोज क्या होगा? आई एम फाइन ओवर माई फ्रेंड इज फीलिंग। अब यहाँ पे आई एम फाइन और माई फ्रेंड इज फीलिंग सिक, ये दोनों के दरमियान एक कंट्रास्ट पाया जाता है। अब फाइन का और फीलिंग सिक का क्या होगा? आपस में कंट्रास्ट है। तो कंट्रास्ट के इस रिलेशनशिप को शो करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम? हाउएवर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि ना सिर्फ इन दोनों क्लॉजेस को आपस में मिला भी रहा है बल्कि उनके दरमियान एक रिलेशनशिप को भी शो कर रहा है। तो इस तरह से जो वर्ड हैं जो रिलेशनशिप को भी शो करें और उनके रिलेशनशिप के अलावा वो क्या करें? उनके दरमियान कंजक्ट करें, तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? वो कंजक्टिव एडवर्ब्स कहते हैं। एडवर्ब का फंक्शन भी प्ले कर रहा है, जो यहाँ पे कंट्रास्ट का एडवर्ब दे रहा है, कंट्रास्ट का एडवर्ब दे रहा है, और उसके अलावा वो फंक्शन दे रहा है किसका? कंजंक्शन का भी। तो इसको हम कंजक्टिव एडवर्ब कहते हैं। ये कंजक्टिव एडवर्ब में याद रखना है कि ये आपका अप्रोप्रिएट वर्ड होना चाहिए जब हमने इनका इस्तेमाल करना होता है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, इससे आपने देखना है कि वेदर के मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा। क्या होगा जी? आई वॉज कॉन्शियस ऑफ माई हेल्थ। क्या होगा? nonetheless I visited my doctor regularly. Come on, think over this, see this sentence deeply and find out whether this statement is right or wrong, or whether the use of conjunctive verb is appropriate in the context given or not. G. Anyone who can tell? Therefore, शाबाश। therefore आना, क्यों therefore आएगा जी? क्यों therefore आएगा? अब यहाँ पे आई एम कॉन्शियस ऑफ माई हेल्थ और मेरा डॉक्टर के पास विजिट करना, ये क्या है? जो कॉन्शियस है इसका रिजल्ट निकला है या उसका ऑपोजिट है डॉक्टर के पास जाना? मेरा डॉक्टर के पास जाना ये मेरे कॉन्शियस होने का रिजल्ट है। तो जब रिजल्ट हो तो फिर हम नॉनथलेस नहीं लगाते, ये ऑपोजिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहां पे क्या यूज करेंगे हम? therefore, so, thus, as a result, क्या होगा? ये हम hence वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कंजक्टिव वर्ब का जो रिलेशनशिप होता है वो आपने वो ध्यान रखना है कि वहां पे वो क्या उसको अप्रोप्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये कंजक्टिव वर्ब का फंक्शन जो है ना वो आपने देखना है जी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है जी तो आप पूछ लें। Anyone who want to ask question about it? सर थर्ड वाला पढ़। कौन सा वाला? Illustrate? थर्ड वाला। Illustrate वाला? यस सर। जी। जो illustrate है जो वो क्या करता है? किसी चीज को बयान करता है। जैसे क्या होगा? Likewise, indeed वगैरह। तो क्या होगा? ये हमने किसी चीज को बयान करते हैं। जैसे क्या होगा? आप कहते हैं सपोज के इट वाज अ लॉट ऑफ रश, इट वाज अ लॉट ऑफ रश। लाइकवाइज क्या होगा? इट इज द सीन ऑन सम रेलवे स्टेशन। यानी जिस तरह से रेलवे स्टेशन पे
क्या होता है, रेलवे स्टेशन का एक सीन होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उस रश को, लॉट ऑफ रश को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस तरह से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जी बच्चों, नेक्स्ट वाला। Subsequently. सब्सिक्वेंटली रिजल्टेंट होगा, जैसे आपने सब्सिक्वेंटली उस वक्त टाइम को भी कहते हैं और रिजल्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हम जो ना वो रिजल्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है सब्सिक्वेंटली, वो यानी उस टाइम को भी इंडिकेट करता है, यानी बाद में जो इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट करो क्या होगा, वी सी रश को ही ले लें, देयर वाज अ लॉट ऑफ रश ऑन द रोड, सब्सिक्वेंटली ही क्या होगा, ड्रोव थ्रू द स्ट्रीट्स। तो ये रिजल्ट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है और टाइम के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, देयर विद इट। Yes. ओके, चलें जी, आज के लिए इतना ही। चैप्टर इज कंप्लीटेड। इंशाल्लाह टुमारो हम क्या होगा, पोएम पढ़ेंगे और उसके अलावा जी, और इंशाल्लाह इस मंडे से हम वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सिलसिला जो है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम स्टार्ट कर देंगे। वो एडिशनल लेक्चर्स होंगे। यू आर सपोज टू लिसन एंड लर्न ग्रामर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और दैट विल बी एडिशनल टू दीज लेक्चर्स। तो वो आपके लिए एडिशनल होंगे। उसमें आपके राइटिंग प्रैक्टिस, उसके अलावा ग्रामर प्रैक्टिस, उसके बाद जो है ना एमडी कैट के पर्सपेक्टिव से, उसके बाद CSS और डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव से वो मल्टीपल बेस्ड जो है ना वो लेक्चर होंगे। दैट विल बी नॉट बिगर वन, दैट विल बी स्मॉलर वन। और ताकि आप इजीली 20 से 25 मिनट का डेली का लेक्चर जो है ना वो अटेंड करेंगे। जी, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज हैव अ नाइस टाइम। सी यू बच्चों, अल्लाह हाफिज। सर जी सर स्लाइड सेंड कर दीजिएगा। जी, मैं लेक्चर सेंड कर रहा हूँ। अच्छा। So translation and locus were going